Hello dear students, good morning to one and all. Welcome back to the chemistry class. In the last class, I have explained about atomic mass, the concept of atomic mass. But in today's session, I am going to teach you about a simple concept, average atomic mass. Note the heading. Average atomic mass. As already you know about the concepts of atomic mass, its definition and atomic masses of different elements up to atomic number 20 we have discussed in the last class, right? So here in 9th class you have studied about isotopes, isobars, isotones and isoelectronic species in IIT foundational classes. So can you recall the definition of isotopes? What is meant by isotopes? Simple definition है same species having a different mass number are called as isotopes. Am I right? देखिए definition एक बार. The species which having same atomic number same है, इसका मतलब same species ऐसा यूज कर रहे हम. ठीक है, आप definition कैसे भी कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट रहना चाहिए. दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. सिंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 or more isotopic forms, so therefore the atomic mass, the actual atomic mass is the average of all the isotopes, and this atomic mass and its composition can be determined by using mass spectrum. Here the mass spectrum is one of the concept from spectroscopy. Spectroscopy is a branch of chemistry. वो भी chemistry का branch है, which deals with interaction of light radiations with the matter. Interaction of light radiation with matter. So in that different branches are there again, UV, NMR, C13. So mass spectroscopy वो concept में हर एक element का composition and its mass we can determine. So by using the mass spectrum, percentage composition of a percentage of its abundance and its mass can be determined. And by knowing its isotopic mass, we can calculate the average atomic mass. For example, let us illustrate this concept. Average atomic mass. As you know that, give an example of isotope. Isotope को एक example दीजिए, कौन सा देते आप? Write an example of an isotope. Okay, of course, already आपके mind में आया होगा isotope का example बोले तो definitely आपके कौन सा example बोलते हैं? Carbon 12, carbon 13, carbon 14, C12, 13 and 14, right? So I am writing the same example here. Isotope of carbon, atomic number क्या है carbon का? 6, mass number 12 carbon का. One more carbon का isotope, atomic number 6, mass number 13, atomic number 6, mass number 14. अब यहाँ पर क्या है? परसेंटेज ऑफ अबंडेंस. नेचर में हमको कार्बन जो मिलेगा वो कार्बन में 12, 13, 14 ये 3 आइसोटोप में उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है? 100% C12 नहीं रहते, 100% C13 नहीं रहते, 100% C14 भी अवेलेबल नहीं है. सो इसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इज डिफरेंट. परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 12 का परसेंटेज कितना है? 98.89%. 100 ग्राम अगर रहा तो 100 ग्राम में
98.89 ग्राम ऑफ C12 रहता है। C13 का परसेंटेज है 1.108%, whereas C14 का परसेंटेज बहुत कम है 2 into 10 to the power minus 10%, 2 into 10 to the power of minus 10%। देखिए अगर 100 ग्राम कार्बन हमारे पास है देन उसके अंदर 98.89 ग्राम C12 आइसोटोप रहेगा, 1.108% C13 आइसोटोप रहेगा एंड 2 into 10 power minus 10। साइंटिफिक नोटेशन का इसका मीनिंग आपको पता है 10 to the power of minus 10। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 10 डिजिट्स बैक जाते हैं टोटल। अगर आपको ये हटाना है तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 0.000000002 ऐसा 9 zeros के बाद 2 आते हैं आपको, उतना मींस बहुत कम है यहाँ पर रेडियो एक्टिव, सो बहुत कम है। ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हुआ। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, तो लेट अस डिफाइन और इलस्ट्रेट। These are the isotopes of carbon and it is percentage of abundance I have given. So this one is percentage of abundance, percentage of abundance, and these are isotopes, isotopes of carbon, isotopes of carbon। isotopes का definition आपको clear है? तो आप देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज, एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशंस आप ही बोलना चाहिए, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ, हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर? इसका मास इनटू इसका अबंडेंस, अबंडेंस एंड मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब केस में। तो देखिए यहां पर क्या है, 12 इज द मास इनटू 98.89, दिस इज वन आइसोटोप, प्लस सिमिलरली 13 इंटू 1.108 प्लस और एक आइसोटोप है 14 इंटू कितना? यस 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, बहुत कम है ये। सो होल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। टोटल कितना है? ये पूरा तीनों को ऐड किया तो हमको क्या कितना मिलेगा? 100%, 100%। तो ये हुआ आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको हम वर्डिंग में कैसा लिखना? डेफिनेशन, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। देखिए ये क्या किया मैंने? सम, एडिशन किया है, सम ऑफ, एडिशन है, सम ऑफ, ये तीनों को मैंने ऐड किया, एडिशन ऑफ दीज थ्री, करेक्ट? सम ऑफ, अब यहां पर क्या है? ये प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया है, सम ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है? मास, और ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, डिवाइडेड बाय ये क्या है? टोटल परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। एम आई राइट? तो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, एवरेज एटॉमिक मास is defined as, average atomic mass is defined as, it is the sum of, so आपको ये सिंबल के बारे में पता होगा, समेशन मीन्स सम ऑफ, जितना भी आइसोटोप से 1 2 3 4 5 जितना भी अगर रहा तो उसको पूरा मास इनटू अबंडेंस, मास इनटू अबंडेंस, मास इनटू अबंडेंस, मास इनटू अबंडेंस, पूरा मास इनटू अबंडेंस मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को ऐड करना पड़ेगा पूरा। सो summation of, that means the sum of what? Sum of what? Mass of isotope, mass of isotope into, ये mass of isotope है, into क्या गया यहाँ पर? Percentage of abundance, percentage of occurrence or abundance,
percentage of occurrence or percentage of abundance, whole divided by क्या है ये 100, क्या है ये तीनों को सम किया मैं, that means total abundance और total occurrence कितना है, total occurrence. So this is the definition of average atomic mass. यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है इन तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम ये है आपका इलस्ट्रेट किया है एक प्रॉब्लम में. कार्बन exists in 3 isotopic form whose mass and percentage of abundance are given. Calculate the average atomic mass of carbon. तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, दैट मींस सम ऑफ, ये सम है, सम ऑफ क्या है, सम ऑफ व्हाट, मास इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मास ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज, मास ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज, मास ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल अकरेंस. 100% है, टोटल अबंडेंस 100 है, दैट गिव्स अस योर आंसर. तो ये होगा आंसर. अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा आपको, मल्टीप्लाई करके देखिए इसका आंसर 12 into 98.89 that is 1186.68 प्लस सेकेंड कौन सा है 13 into 1.108 उसका कितना आंसर आया आपका 14.404 प्लस ये कितना है 14 into 2 that is 28 into 10 to the power minus 10. Look at this, 28 into 10 power minus 10. Can we take it as 0? नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि 28 into 10 power minus 10 बोले तो कितना हुआ 0.000000. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8. देखिए इसका मास बहुत कम है तो वी कैन कंसीडर एज 0 डायरेक्टली, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दिस मास वी कैन नेग्लेक्ट डायरेक्टली हियर. सो होल डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय 100. तो इसका आंसर कितना हुआ आपका, सो दिस गिव्स रेस्ट टू, ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड किया तो आपको मिलेगा 1201.08 all divided by 100, that is equals to 12.01 U. I am representing just U is its unit. So here this U represent ये M U लिखने की जगह मैंने just U लिखा है. Atomic mass unit. Atomic mass unit can be represented in simple words, that is unified mass बोल के हम U represent करते हैं. ग्राम्स, 12 कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम बोलते हैं, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं. मैं वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा अभी आगे है वो ग्राम एटॉमिक मास. तो ये हुआ इसका एवरेज एटॉमिक मास. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? देखिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. आपको जस्ट एक डेफिनेशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल्स लेके इलस्ट्रेट किया यहां पर. तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड करना है, गिवन विल बी देयर, गिवन डाटा क्या रहता है, गिवन डाटा में आइसोटोप वो देते हो, आइसोटोप्स, आइसोटोपिक मास रहता है और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस रहता है. यू नीड टू कैलकुलेट. क्या है कैलकुलेशंस में, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, इतना है. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. So you can calculate average atomic mass. Am I right? Okay, let's move to the next problem. एक second problem आप solve कीजिए. Now let's take the second problem. Number 2 problem. Second problem solve कीजिए. Second problem. First problem ये हुआ हमारा. Second problem. Note the second problem. Take the second problem. Chlorine exists as in two isotopic form. Simple note में problems note कीजिए.
chlorine exists in two isotopic form. Chlorine exists in two isotopic form as follow. कौन सा आइसोटोप है क्लोरीन का? क्लोरीन 35 as per. Okay, chlorine exists in two isotopic form as per. Chlorine 35 and chlorine 37. इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं ना, क्लोरीन 35 ऐसे लिखने की जगह क्लोरीन सुपरस्क्रिप्ट 35, क्लोरीन सुपरस्क्रिप्ट 37, मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है क्लोरीन का? 17, सबस्क्रिप्ट इज 17, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। These two are the isotope of chlorine. With percentage of occurrence क्या है? In the ratio, chlorine exists in two isotopic form as follows: chlorine 35 and chlorine 37 in 3:1 ratio. 3:1 ratio. अब देखिए यहाँ पर 3:1 रेशियो बोल के रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। 3:1 रेशियो अगर आपको परसेंटेज में लेना है तो 75% एंड 25% होता है। 75% ऑफ क्लोरीन 35, तो ये इन्होंने दिया है 3:1 रेशियो। 3:1 रेशियो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस भी दिया है, ये वर्डिंग में दिया। अगर सिंपली एक टेबल भी दे सकते हो उन्होंने प्रॉब्लम में, कैसा? क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इसका मास है, दिस इज मास इज 35, मास इज 37। ये आइसोटोपिक मास दिया है क्लोरीन का, और इसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इज परसेंटेज। मैं परसेंटेज में लिया इसलिए यहाँ पर 75% एंड 25%। देखिए 75% एंड 25% है, जस्ट नहीं तो 3:1 रेशियो दिया है ना, 3:1 रेशियो। ऐसे एक टेबल भी देते हैं आपको सिंपल क्वेश्चन में, ऐसे एक टेबल फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं यहाँ पर, सिंपल फॉर्म। ये आइसोटोप है। अब देखिए यहाँ पर आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर और एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम में एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन बाय, इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन बाय, आपको पता है, आपके हिसाब से लिखिए मास इंटू 35 इंटू क्या लेना पड़ेगा हमको? 75% का 3R, आप जो कौन से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 75 एंड 25 लिया तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, नहीं तो जस्ट 3:1 लिया तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, टोटल कितना हुआ? जब हम 3 एंड 1 यूज करें 3:1, 3 प्लस 1 कितना हुआ टोटल? 4, तो ऐसा ही लेना पड़ेगा आपको। अगर इसके जगह इसके जगह आप परसेंटेज यूज किया होगा तो परसेंटेज और में 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 75 प्लस 25 100 या 3 प्लस 1 बाय 4, दोनों करेक्ट है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना होता है देखिए आपको। इन बोथ द केस इफ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर 35.5 is the your average atomic mass. 35.5 is the average atomic mass. Is it clear? चलो ठीक है, आपको अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लेट्स विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं तो एक दो प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट देता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Calculate the average atomic mass from the following data. Calculate the average atomic mass from the following data. देखिए यहां पर क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. थर्ड प्रॉब्लम, गिवन आइसोटोप दिया है नियान 20, नियान 21, नियान 22. ये क्या है, नियान का 3 आइसोटोप्स है. परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, अब मास तो आपको पता है, मास कितना है इसका 20, 21, 22. समटाइम्स यहां पर 20 रिप्रेजेंट है, यहां पर 20 पॉइंट समथिंग भी दे सकते हैं आपको, एक्यूरेट मास देते हैं आपको. नेक्स्ट कॉलम में क्या है, यहां पर फर्स्ट कॉलम हो गया नियम का. नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ अबंडेंस में, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस में 0.9051 नियान 20 का है, whereas 0.0027 21 का है, 0.922 22 का है. तो चलिए कैलकुलेट कीजिए इसका. क्या करना आपको पता है, फॉर्मूला यहां पर है, तो यू कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. Take one more problem. Fourth one. Same. Calculate the average atomic mass from the following data. Argon 36, 37. Sorry, argon 36, argon 38, argon 40. 3 isotopes are there. इसका मास है 35.967. देखिए 36 बोल के देखिए एक्यूरेट मास दिया है यहां पर 37.963, 39.962 एंड इसका परसेंटेज दिया है 0.337, 0.063, 99.600%. चलिए यहां पर टेक वन मोर प्रॉब्लम. फिफ्थ प्रॉब्लम, बोरान अकर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म. बोरान अकर इन 2 आइसोटोपिक forms with mass number 10 and 11. That is boron 10 and boron 11. Boron 10 and 11. If average atomic mass of boron is 10.8 U, then calculate the percentage of abundance of boron 10 and boron 11. यहां पर क्वेश्चन रिवर्स पूछा है हमको. प्रीवियस प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास बोल के पूछा था, लेकिन यहां पर क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन 10.8 U, यूनिफाइड एटॉमिक मास इट इज गिवन. परसेंटेज पूछ रहे तो आपको बोरान आइसोटोप है, यहां बोरान 10 एंड 11 है, तो ये 10 11 का मास है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका x एंड y. आपको यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11 इफ एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन. एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8.
Hope this concept is very simple and you can solve these problems. प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। रेफरेंस के लिए यहां पर इसका आंसर नोट कीजिए। थर्ड प्रॉब्लम का आंसर आपको 20.18 आना चाहिए। दिस इज द आंसर। whereas फोर्थ प्रॉब्लम में 39.94 अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करके आंसर आपको नियर बाय आंसर आ सकते हैं। आपको कैलकुलेशन में प्लस और माइनस थोड़े वेरिएशन हुआ तो 20.18 नियर बाय आंसर आपको आएगा। एंड दिस वन जस्ट चेक आउट दिस आंसर है मेरे पास ऑलरेडी, बट आप एक बार चेक कीजिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11? यहां पर फॉर्मूला है, ये नहीं दिया तो आपको मैं यहां पर जस्ट हिंट दे दूं। इसकी जगह लेट अस कंसीडर B10 का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस अगर आप X कंसीडर किया तो इसका कितना होगा? B10 का X है तो इसका कितना होगा? Y तो नहीं लिख सकते। टोटल अबंडेंस कितना रहता है? 100। वो 100 में इसका X है तो इसका क्या होगा? गुड, 100 माइनस X। तो इसका आप 100 माइनस X नहीं तो वाइस वर्सा आप कौन से भी ले सकते हैं। एक आइसोटोप का X कंसीडर किया तो दूसरा का 100 माइनस X आएगा। ये वैल्यूज X एंड 100 माइनस X वैल्यूज यूज करके सॉल्व कीजिए, आपको X का वैल्यू मिलेगा। X वैल्यू मिले तो दोनों का वैल्यूज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 20 एंड 80 आंसर आएगा। किसका 20 किसका 80 क्रॉस चेक कीजिए। आप कौन कैसा कंसीडर करते देखिए, सॉल्व कीजिए। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व। आंसर इजी हुआ होगा आपको। गुड, नेक्स्ट in the next class we'll discuss about the next concept. तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।